Hello everyone, welcome to Unacademy. This is Devashri here. I'm working as an assistant professor. So if you want to join Unacademy Plus, you can join it with the help of my referral code, that is DEBA1. So what are the benefits of joining Unacademy Plus? Are daily live classes, structured courses as per the CSIR syllabus, live tests and quizzes, unlimited access to all the educators at single subscription. So if you want to join Unacademy Plus, you can join it with the help of my referral code. You can also avail the maximum benefit at minimum price with the help of my referral code, that is DEBA1. So if we see the price list, if you join for 1 month, the price will be around 1890. For 3 months, it is 4725. For 6 months, it is 8505. For 12 months, it is 10395. For 24 months, it is 15120. So if you use my referral code, that is DEBA1, you will be getting a 10% off. So this is my referral code. If you have any queries for my referral code, please feel free to ask about it, right? So if you want to join Unacademy Plus, join it with the minimum price and maximum benefit, right? Okay, so let's move into the topic. So today our topic of discussion will be about the plant hormones, right? Very important topic from exam point of view. So if we discuss hormone, before going into the detail of the plant hormone, let me first clear with the hormone. What is hormone? A hormone is any chemical produced in one part of the body that has target elsewhere in the body. Means these hormones are produced in one specific part, and their function where they will act is also different. मतलब क्या होता है, मान लो ये कोई एक suppose this is a plant, right? अगर hormone यहाँ produce हो रहा है, तो हो सकता है कि उसका इफेक्ट यहाँ भी हो सकता है. ऐसा नहीं है कि जहां प्रोड्यूस होगा वही इफेक्ट करेगा. इट इज नॉट लाइक दैट. अगर ये यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है तो इसका इफेक्ट यहाँ पे भी हो सकता है, right? So hormone is any chemical produced in one part of the body that has a target elsewhere in the body. Plants have 5 classes of hormones. अगर हम plants have 5 classes of hormones. Animals, especially chordates, have a much larger number. Hormones and enzymes serve as a control chemicals in multicellular organism. अगर हम plants की specifically बात करते हैं, क्योंकि यहाँ इस chapter में मैं plant hormones के बारे में ही deal करूंगी, तो अगर हम plant hormone को specifically देखते हैं तो प्लांट्स के केसेस में सिर्फ और सिर्फ आपके 5 क्लासेस ऑफ हॉर्मोन्स है. लेकिन अगर हम हॉर्मोन की बात किसी कॉर्डेट्स में बात करें या फिर कोई 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 या फिर आप बोल सकते हो कोई एनिमल्स में बात करें, तो इन दैट केस क्या होता है, इनके जो अमाउंट होते हैं या जो क्वांटिटी होते हैं वो बहुत ज्यादा होता है, राइट? तो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में ही सिर्फ इनका क्वांटिटी जो है 5 क्लासेस देखा जाता है, राइट? Okay, so today the language of the class will be in Hindi or bilingual, you can also say, because I have got request from some students to use Hindi, right? Okay, okay. This is the first class of hormone, ऑक्सिन. ये सबसे पहला क्लास है हार्मोन का, ऑक्सिन, राइट? यहाँ पे आपके हम 5 या उससे थोड़ा सा ज्यादा क्लासेस के बारे में पढ़ेंगे, राइट? ये सबसे पहला क्लास है. ये कौन सा है आपका? ऑक्सिन. यहाँ पे हम ऑक्सिन का पूरा प्रोसेस देखेंगे, कहाँ सिंथेसिस होता है, क्या रोल है, राइट? तो अगर हम ऑक्सिन की बात करते हैं, ऑक्सिन प्रमोट स्टेम इलोंगेशन. सबसे पहला काम क्या है, ऑक्सिन जो है किसी भी प्लांट का स्टेम की इलोंगेशन को बढ़ा देता है. मान लो ये कोई प्लांट है, राइट? इतना छोटा है, लेकिन जब आप उसको ऑक्सिन से ट्रीट करोगे, किसी भी प्लांट हार्मोन से ऑक्सिन से आपने ट्रीट किया, तो प्लांट का हाइट कितना बड़ा हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा. अब देखो इतना बढ़ गया है प्लांट का हाइट, राइट? लेकिन आप ध्यान से देखो, यहाँ पे जो ब्रांचिंग है, ब्रांचेस नहीं है, ब्रांचेस एब्सेंट.
तो मतलब क्या हुआ, ऑक्सिन इज इनहिबिटिंग द फॉर्मेशन ऑफ ब्रांचेस। तो इसको हम कह सकते हैं ऑक्सिन इनहिबिट्स ग्रोथ ऑफ लेटरल बड्स, मेंटेन द बड्स एपिकल डोमिनेंस। ये सिर्फ और सिर्फ बड के एपिकल डोमिनेंस को ही सपोर्ट करते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ स्टेम को इलोंगेट करवाता है, इनहिबिट करता है लेटरल बड ग्रोथ को। दे आर प्रोड्यूस्ड इन द स्टेम, बड्स, रूट्स एंड टिप्स। तो जो भी ऑक्सिन्स होते हैं ये आपके प्रोड्यूस्ड होता है स्टेम्स में, बड्स में और रूट टिप्स में। एग्जाम्पल हो गया इंडोल एसिटिक एसिड। सो अगर क्वेश्चन आया ऑक्सिन का प्रोडक्शन कहाँ होता है, तो ये होता है आपका स्टेम्स में भी होता है, बड्स में भी होता है एंड रूट टिप्स में भी होता है, राइट। तो ये ऑक्सिन क्या करते हैं, ग्रेविट्रोपिज्म, मतलब ये ग्रेविटी के अगेंस्ट में भी आपका रिस्पॉन्स शो करता है और लाइट के अगेंस्ट में भी रिस्पॉन्स शो करता है। कौन, ऑक्सिन। तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं कि ये फोटोट्रोपिज्म भी शो करता है, मतलब रिस्पॉन्स अगेंस्ट लाइट, राइट। और ये ग्रेविट्रोपिज्म को भी शो करता है। ग्रेविट्रोपिज्म मतलब क्या, जो रिस्पॉन्ड करता है फोर्स ऑफ ग्रेविटी को, तब हम उसको बोलते हैं ग्रेविट्रोपिज्म, राइट। सो ये हो गया आपका ऑक्सिन का बेसिक ओवरव्यू। ऑक्सिन प्लेज अ रोल इन मेंटेनिंग द एपिकल डोमिनेंस। सो ऑक्सिन का सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट रोल क्या है कि ये प्लांट के एपिकल डोमिनेंस को मेंटेन करके रखता है। Most plants have lateral, sometimes called axillary buds located at nodes where leaves attach to the stem. Buds are embryonic meristems maintained in a dormant state. Auxin maintains this dormancy. So auxin helps in maintaining the dormancy of the buds, right? अगर मान लो मान लो ये जो ऑक्सिन है, हमें पता है कि ऑक्सिन सबसे एपेक्स में रहता है, राइट। और मान लो कि मैंने अगर एपेक्स को काट दिया, मैंने क्या किया, एपेक्स को काट दिया, तो तुम्हें क्या होगा, ऑक्सिन का प्रोडक्शन होगा, नहीं होगा, राइट। तो इस बात को ध्यान देना है, इफ द एपेक्स ऑफ द शूट इज रिमूव्ड द ऑक्सिन इज नो लॉन्गर प्रोड्यूस्ड। तो ऑक्सिन फिर से प्रोड्यूस नहीं होगा। दिस विल कॉज द लेटरल ब्रड्स टू ब्रेक देयर डोरमेंसी एंड बिगिन टू ग्रो। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, आप लोगों ने देखा होगा जो भी गार्डनर्स होते हैं वो क्या करते हैं, जब प्लांट्स को ब्रांचिंग करवानी होती है तो वो टिप से उसको काट देते हैं, टिप वाले पोर्शन को। अगर मैं यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करूँ तो आप ध्यान से देखना, अगर ये प्लांट है और मुझे चाहिए कि यहाँ पे ब्रांचिंग आए, तो मैं क्या करूंगी, ये टिप को हटा दूंगी। जैसे ही मैं इस टिप को रिमूव कर दूंगी, तब क्या होगा, चारों तरफ ब्रांचिंग होना शुरू हो जाएगा धीरे धीरे। क्यों, क्योंकि एपिक जो ऑक्सिन है वो एपेक्स में होता है, एपिकल मेरिस्टेम में, उसको निकाल दिया गया है, उसको हटा दिया गया है। तो कोई और ऐसा फैक्टर नहीं है जो कि ब्रांचिंग को स्टॉप करवा सकता है, राइट। तो इसीलिए क्या होगा, वो जो ऑक्सिन जो होता है मेनली उसका फंक्शन होता है एपिकल मेरिस्टेम को बढ़वाना, और ये क्या करते हैं, आपका लेटरल ब्रांच को ग्रोथ को, लेटरल ब्रांचिंग को क्या करते हैं, अलाउ नहीं करते हैं, राइट। जैसे ऑक्सिन रिमूव हो जाएगा तब साइटोनिन क्या करेंगे, आपका लेटरल ब्रांचिंग शो करता है। तो ये जो ऑक्सिन्स होते हैं वो आपके नेचुरल भी हो सकते हैं, सिंथेटिक भी हो सकता है, राइट। तो अगर हम नेचुरल ऑक्सिन्स के बारे में बात करते हैं, तो जो नेचुरल ऑक्सिन्स हैं, जैसे इंडोल ट्री एसिटिक एसिड, इसको हम IAA भी लिख सकते हैं, राइट। तो ये हो गया इंडोल ट्री एसिटिक एसिड जो कि नेचुरल ऑक्सिन है। नेक्स्ट हो गया इंडोल ट्री ब्यूटायरिक एसिड IBA। इंडोल ट्री ब्यूटायरिक एसिड भी आपका एक नेचुरल ऑक्सिन है। नेक्स्ट हो गया आपका इंडोल ट्री प्रोपियोनिक एसिड IPA। ये भी आपका क्या हो गया, ये भी आपका नेचुरल ऑक्सिन है। 4 क्लोरोइंडोल एसिटिक एसिड, ये भी आपका क्या है, नेचुरल ऑक्सिन है। नेक्स्ट फिनाइल एसिटिक एसिड। सो दिस आर द 5 टाइप्स ऑफ नेचुरल जो कि नेचुरली फाउंड होता है। कौन कौन सा है, इंडोल ट्री एसिटिक एसिड, इंडोल ट्री ब्यूटायरिक एसिड, इंडोल ट्री प्रोपियोनिक एसिड, फिनाइल एसिटिक एसिड, 4 क्लोरोइंडोल एसिटिक एसिड। सेम ही तो है, इंडोल ट्री एसिटिक एसिड, इंडोल ट्री ब्यूटायरिक एसिड, इंडोल ट्री प्रोपियोनिक एसिड, फिनॉक्सी एसिटिक एसिड, or you can say phenyl acetic acid, then 4 chloroindole acetic acid, right। तो ये आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका नेचुरल ऑक्सिन्स। नेक्स्ट
अगर हम सिंथेटिक ऑक्सीजन के बारे में बात करते हैं, सिंथेटिक ऑक्सीजन क्या हो गया? 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, अल्फा नैप्थेलिन एसिटिक एसिड. So 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, अल्फा नैप्थेलिन एसिड, 2,4,5-ट्राइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड. देखो फिनॉक्सी एसिटिक एसिड जो है ये आपका सिंथेटिक है, राइट? यहाँ पे 2,4-डाइक्लोरो भी सिंथेटिक है, 2,4,5-ट्राइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड भी आपका सिंथेटिक ऑक्सीजन है, राइट? और अल्फा नैप्थेलिन एसिटिक एसिड जो है ये भी सिंथेटिक है, प्लस डाइकम्बा. डाइकम्बा का क्या है नेम? 2-methoxy-3,6-डाइक्लोरोबेंजोइक एसिड, 2-methoxy-3,6-डाइक्लोरोबेंजोइक एसिड. ये भी आपका क्या है? डाइकम्बा भी आपका एक सिंथेटिक ऑक्सीजन है. डाइकम्बा का नाम क्या है? 2-methoxy-3,6-डाइक्लोरोबेंजोइक एसिड, राइट? नेक्स्ट, अगर हम ऑक्सीजन सिंथेसिस के बारे में बात करते हैं, ऑक्सीजन सिंथेसिस आपके दो तरह के होते हैं. एक तो आपका ट्रिप्टोफैन डिपेंडेंट हो गया और दूसरा हो गया आपका ट्रिप्टोफैन इंडिपेंडेंट, राइट? अगर हम ट्रिप्टोफैन डिपेंडेंट प्रोसेस के बारे में बात करते हैं, ये बेसिकली आपका 4 टाइप्स के होते हैं. क्या? इंडोल 3 एसिटामाइड, इंडोल 3 एसिटोनाइट्राइल, ट्रिप्टामाइड, इंडोल 3 पायरुवेट, राइट? तो अगर हम ऑक्सीजन के बायोसिंथेसिस के बारे में बात करते हैं, जो ऑक्सीजन के बायोसिंथेसिस होते हैं वो 2 वेज में होता है, ट्रिप्टोफैन डिपेंडेंट एंड ट्रिप्टोफैन इंडिपेंडेंट. अगर हम डिपेंडेंट को फोकस करते हैं, इसके आपके 4 वेराइटीज होते हैं. जैसे आपका हो गया क्या? इंडोल 3 एसिटामाइड, इंडोल 3 एसिटोनाइट्राइल, ट्रिप्टामाइड एंड इंडोल 3 पायरुवेट एसिड. और अगर हम ट्रिप्टोफैन इंडिपेंडेंट के पाथवे भी देखेंगे अभी हम, और ये जो ट्रिप्टो ऑक्सीजन होता है इनका प्रोडक्शन कहाँ होता है? इनका प्रोडक्शन होता है आपका शुद्ध एपिकल मेरिस्टम में होता है, राइट? अगर हम ट्रिप्टोफैन इंडिपेंडेंट पाथवे के बारे में डिस्कस करते हैं, ट्रिप्टोफैन इंडिपेंडेंट, राइट? मतलब इसको ट्रिप्टोफैन की जरूरत नहीं है. क्लियर? तो ट्रिप्टोफैन इंडिपेंडेंट पाथवे जो होता है उसका शुरुआत होता है आपका कॉरिस्मेट से, राइट? आपने पढ़ा होगा, हमने जब ट्रिप्टोफैन देखा था तब भी हमने कॉरिस्मेट देखा था, राइट? तो यहाँ भी कॉरिस्मेट से शुरू होता है. कॉरिस्मेट आपका क्या करेगा? एंथ्रानिलेट कंपाउंड को फॉर्म करता है. एंथ्रानिलेट क्या करता है आपका? 5-फॉस्फोराइबोसिल एंथ्रानिलेट. तो कॉरिस्मेट सबसे पहले जो कॉरिस्मेट होता है वो फॉर्म करता है एंथ्रानिलेट. फिर ये एंथ्रानिलेट थोड़ा सा मॉडिफिकेशन होके 5-फॉस्फोराइबोसिल एंथ्रानिलेट में चेंज होता है. 5-फॉस्फोराइबोसिल एंथ्रानिलेट फिर चेंज होता है आपका इंडोल 3 ग्लिसरॉल फॉस्फेट. कहाँ चेंज होता है? इंडोल 3 ग्लिसरॉल फॉस्फेट में, जो कि आपका इंडोल 3 एसिटोनाइट्राइल, इंडोल 3 एसिटिक एसिड फॉर्म करता है, जो कि आपका इंडोल एसिटिक एसिड ही होता है, राइट? तो हमने ट्रिप्टोफैन इंडिपेंडेंट पाथवे में क्या देखा? जो कॉरिस्मेट होता है वो आपका एंथ्रानिलिन को फॉर्म करता है. एंथ्रानिलिन थोड़ा सा मॉडिफाई होता है, फिर वो चेंज होता है 5-फॉस्फोराइबोसिल एंथ्रानिलेट. फिर ये क्या करते हैं? ये एक्टिवेट करता है इंडोल 3 ग्लिसरॉल फॉस्फेट, फिर दोनों जाके एक्टिवेट करवाता है इंडोल 3 एसिटोनाइट्राइल एंड इंडोल 3 एसिटामाइड. दोनों आपका इंडोल एसिटिक एसिड की तरह काम करते हैं. ये हो गया आपका ट्रिप्टोफैन इंडिपेंडेंट पाथवे, राइट? नेक्स्ट, तो we have seen the tryptophan independent pathway. तो tryptophan independent pathway क्या था? थोड़ा सा मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देती हूँ for the understanding. कॉरिस्मेट था, कॉरिस्मेट ने क्या किया था? एंथ्रासिलेट फॉर्म किया था. एंथ्रासिलेट क्या हो गया था? मॉडिफाई होके 5-फॉस्फो एंथ्रासिलेट फॉर्म किया था, राइट? यहाँ पे जगह नहीं है तो मैंने ऐसे छोड़ दिया है. फिर आपको ध्यान देना है 5-फॉस्फो एंथ्रासिलेट. फिर ये क्या करता है आपका? इंडोल ग्लिसरोफॉस्फेट. फिर यहाँ आता है इंडोल 3 एसिडामाइड, जो कि आपका इंडोल 3 एसिटिक एसिड को फॉर्म करवाता है. ये था आपका ट्रिप्टोफैन इंडिपेंडेंट पाथवे. अब हमारा फोकस रहेगा ट्रिप्टोफैन डिपेंडेंट पाथवे पे, राइट? तो अगर हम ट्रिप्टोफैन डिपेंडेंट पाथवे को डिटेल में देखते हैं, जो ट्रिप्टोफैन होता है उसमें एक एंजाइम वर्क करते हैं जिसका नाम है ट्रिप्टोफैन ट्रांस अमीनेज, राइट? ट्रिप्टोफैन ट्रांस अमीनेज वो क्या करता है? वो डीअमीनेशन करवाता है और ट्रिप्टोफैन को आपका चेंज करता है इंडोल 3 पायरुवेट में,
राइट। ट्रिप्टोफैन जो है वो चेंज हो जाता है इंडोल थ्री पायरुवेट में विद द हेल्प ऑफ अ एंजाइम नोन एज ट्रिप्टोफैन ट्रांसएमिनेज। और ये जो प्रोसेस होता है इसको हम बोलते हैं क्या, इसको हम बोलते हैं डीएमिनेशन, राइट। अब जो इंडोल थ्री पायरुवेट होता है वो थोड़ा सा मॉडिफिकेशन और शो करता है, मतलब वो डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन अंडरगो करता है। ये अपने आप से कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप को हटा देते हैं, तो हम उसको बोलते हैं डिकार्बोक्सिलेज, राइट। और ये एंजाइम का नाम है डिकार्बोक्सिलेज और प्रोसेस का नाम है डिकार्बोक्सिलेशन, राइट। ये क्या करते हैं, इंडोल थ्री पायरुवेट को इंडोल थ्री एसिटाल्डिहाइड में चेंज कर देते हैं। अब इंडोल 3A डिहाइड्रोजिनेज आते हैं, फिर वो क्या करते हैं, इंडोल 3 एसिटाल्डिहाइड को इंडोल 3 एसिटिक एसिड में कन्वर्ट करवाता है। तो ये हो गया आपका एक ट्रिप्टोफैन डिपेंडेंट पाथवे। दूसरा एक है क्या, ट्रिप्टोफैन डिकार्बोक्सिलेशन के थ्रू ट्रिप्टोअमाइन में चेंज होता है, फिर ये आपका चेंज हो जाता है इंडोल 3 एसिटाल्डिहाइड विद द हेल्प ऑफ डीएमिनेशन। इंडोल 3 एसिटाल्डिहाइड फिर चेंज हो जाता है इंडोल 3 एसिटिक एसिड में। ये हो गया आपका ट्रिप्टोफैन डिपेंडेंट पाथवे। टोटल 4 है, हमने 2 देखा, अभी और आगे 2 देखेंगे। ट्रिप्टोफैन इंडोल 3 एसिडोनाइट्राइल नाइट्रिलेज के थ्रू इंडोल 3 एसिटिक एसिड में कन्वर्ट होता जा रहा है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, जो ट्रिप्टोफैन है वो इंडोल 3 एसिडोनाइट्रिल में कन्वर्ट होता है, जो कि आपका नाइट्रिलेज एंजाइम के थ्रू वो चेंज होता है इंडोल 3 एसिटिक एसिड। तो ये कौन सा पाथवे हो गया, ये हो गया एसिटोनाइट्राइल का पाथवे, राइट। और अगर हम बात करते हैं ट्रिप्टोफैन मोनोऑक्सीजनेज, ये एक एंजाइम है, ये क्या करते हैं, ट्रिप्टोफैन को इंडोल 3 एसिटामाइड में कन्वर्ट करवाता है, राइट। तो ट्रिप्टोफैन मोनोऑक्सीजनेज एक एंजाइम है जो कि आपका ट्रिप्टोफैन को इंडोल 3 एसिटामाइड में कन्वर्ट करवाता है, राइट। ये हो गया आपका ट्रिप्टोफैन डिपेंडेंट पाथवे। अगर हम ऑक्सिन के ट्रांसपोर्ट के बारे में बात करते हैं, तो ऑक्सिन का जहां सिंथेसिस होता है उसको हम बोलते हैं शूट एपेक्स। तो ऑक्सिन का सिंथेसिस होता है आपका शूट एपेक्स में, मतलब ये हो गया अगर आपका कोई प्लांट है, राइट, तो यहाँ पे जो शूट एपेक्स है, जो यहाँ पे ये वाला जो शूट एपेक्स है, यहाँ पे आपका क्या होता है, ऑक्सिन का सिंथेसिस होता है, राइट। तो ऑक्सिन का सिंथेसिस शूट एपेक्स में होता है, फिर उस शूट से लेके ऑक्सिन को ट्रैवल या फिर कैरी करके लेके जाते हैं आपके दूसरे बॉडी पार्ट्स में, राइट। तो यहाँ पे इसको हम बोलते हैं बेसिपिटल ट्रांसपोर्ट। बेसिपिटल ट्रांसपोर्ट किसको बोलते हैं, जब ट्रांसपोर्ट शूट टू रूट होते हैं तब हम उसको बोलते हैं क्या, बेसिपिटल ट्रांसपोर्ट। इट इज बेसिकली फ्रॉम शूट टू रूट, शूट टू रूट, राइट। और अगर हम ऑक्सिन एक्रोबिटल ट्रांसपोर्ट के बारे में बात करते हैं, वो क्या है, बेसिकली आपका जो आपका ऑक्सिन सिंथेसिस होते हैं लीफ में, उसको ट्रैवल, उसको भी रूट की तरफ लेके जाते हैं, उसको हम बोलते हैं एक्रोपिटल। तो ऑक्सिन का आपको यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, ऑक्सिन का सिंथेसिस होता है आपका शूट एपिकल शूट अपेक्स में होता है, फिर उसके थ्रू उसको कैरी किया जाता है, फिर उसको यू कैन से फिर उसको कैरी करके लेके जाते हैं रूट्स के पास, राइट। तो ये हो गया आपका ऑक्सिन ट्रांसपोर्ट, राइट। नेक्स्ट, अगर हम ऑक्सिन ट्रांसपोर्ट के बारे में ऑक्सिन ट्रांसपोर्ट को थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं, तो ये 2 तरह के होते हैं। एक तो हो गया आपका पोलर ट्रांसपोर्ट और एक हो गया आपका नॉन पोलर ट्रांसपोर्ट, राइट। नॉन पोलर ट्रांसपोर्ट कौन सा हो गया, जो नॉर्मल लीफ से रूट्स में जाएंगे, राइट, थ्रू फ्लोएम सेल्फ, उसको हम बोलते हैं नॉन पोलर ट्रांसपोर्ट। मतलब लीफ से ये, अगर ये उसका लीव्स है तो ये लीफ से रूट्स में जाएंगे, राइट। तो ये कौन उसको लेके जाएगा, फ्लोएम सैप, ठीक है। तो इसको बोलते हैं क्या, नॉन पोलर ट्रांसपोर्ट। और अगर हम पोलर ट्रांसपोर्ट के बारे में बात करते हैं, ये आपके 2 तरह के होते हैं, या तो एपोप्लास्ट या तो सिम्प्लास्ट, राइट। एपोप्लास्ट क्या होता है आपका, मान लो ये एक सेल है, ये भी एक सेल है, ये भी एक सेल है, राइट। और ये उसका साइटोप्लाज्म, ये हो गया सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, ये हो गया सेल वॉल, ये हो गया आपका सेल मेम्ब्रेन, राइट। तो एपोप्लास्टिक पाथवे क्या होता है, जब यहाँ ट्रेवल होगा, मतलब
एपोप्लास्टिक मतलब इंटरसेल्यूलर स्पेसेस के थ्रू ये ट्रेवल होता है, तब हम उसको बोलते हैं एपोप्लास्ट। मतलब जो भी ट्रेवल हो रहा है वो यहाँ ट्रेवल होगा, एपोप्लास्ट। और सिम्प्लास्ट में कहाँ ट्रेवल होता है? सिम्प्लास्ट में इनसाइड के थ्रू ट्रेवल होता है। यहाँ पे जब ट्रेवल होगा तब हम इसको बोलते हैं क्या? सिम्प्लास्ट, राइट। एपोप्लास्ट थ्रू इंट्रासेल्यूलर स्पेसेस, राइट। तो एपोप्लास्ट यहाँ पे जैसे वो ट्रांसफर होते हैं यहाँ, मतलब एपोप्लास्ट के थ्रू जब वो ट्रांसफर होते हैं तो जो ऑक्सिन होता है वो प्रोटोनेटेड फॉर्म में रहता है। मतलब अगर इंडोल एसिटिक एसिड को हम ऐसे लिखते हैं, राइट। अगर ये इंडोल एसिटिक एसिड एपोप्लास्टिक पाथवे को प्रेफर कर रहा है, जो कि आपका बिटवीन इंटरसेल्यूलर स्पेसेस होता है, अगर ये एपोप्लास्टिक को प्रेफर करता है तो अगर ये एपोप्लास्टिक को प्रेफर कर रहा है तो क्या होगा? इसका जो आपका ट्रांसफर करने का तरीका होगा वो कैसा होगा? वो होगा आपका प्रोटोनेटेड। प्रोटोनेटेड मतलब कैसा होगा? प्रोटोनेटेड मतलब IAAH पॉजिटिव, एक प्रोटॉन का एडिशन हो जाता है, जो कि उसका जो क्यों एडिशन होता है? क्योंकि वो ट्रांसपोर्ट में हेल्प करवाता है जब ऑक्सिन इंटरसेल्यूलर स्पीसीज के थ्रू ट्रांसफर हो रहा होता है, राइट। अगर हम सिम्प्लास्ट की बात करते हैं तो सिम्प्लास्ट में क्या होता है आपका? ये बिटवीन द साइटोप्लाज्म के थ्रू ट्रांसफर होते हैं, राइट। और यहाँ पे जो होता है ये ऑक्सिन डीप्रोटोनेटेड फॉर्म में रहता है। सिम्प्लास्ट में ऑक्सिन जो होता है वो आपका डीप्रोटोनेटेड फॉर्म में रहता है। डीप्रोटोनेटेड मतलब क्या? अब यहाँ प्रोटोनेटेड था, यहाँ से अंदर आएगा तो डीप्रोटोनेटेड मतलब ये H हट जाएगा, मतलब IAA प्लस H पॉजिटिव, ये हो गया डीप्रोटोनेटेड, मतलब H यहाँ से हट गया है, राइट। ये हो गया आपका ऑक्सिन ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट अगर हम कुछ इनहिबिटर्स के बारे में बात करते हैं ऑक्सिन का, तो ऑक्सिन के इनहिबिटर क्या क्या है आपका? टीबा, NPA। टीबा को हम क्या बोलते हैं? 2,3,5 ट्राई आयोडो बेंजोइक एसिड। ये क्या करते हैं? ये ऑक्सिन के सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं। कैसे इनहिबिट करते हैं ऑक्सिन? बेसिकली सिंथेसिस मतलब क्या? ऑक्सिन के मूवमेंट को इनहिबिट करते हैं। मतलब अगर ये कोई सेल है, राइट, ये एक सेल है, तो ऑक्सिन क्या करेगा? यहाँ से अंदर आएगा इन, और इस नंबर 1 सेल के लिए, ये सेल 1 है, राइट, और यहाँ से आपका क्या होगा? आउट। फिर सेल 2 के लिए क्या होगा? ये हो गया इन और दूसरा हो गया आउट, राइट। तो ये जो टीबा और NPA है ये बेसिकली इफ्लक्स मूवमेंट मतलब सेल को छोड़ के बाहर जाने के प्रोसेस में ये इंटरफेयर करते हैं। इफ्लक्स में मतलब आउट, दिस प्रोसेस में वो क्या करते हैं? ये जो आपने अभी देखा ये प्रोसेस, लेट मी यूज दिस, ये जो प्रोसेस है आपका यहाँ आउट, राइट, इस प्रोसेस में वो इफेक्ट करवाता है। मतलब ये ऑक्सिन के इफ्लक्स में हेल्प करता है, ऑक्सिन के इफ्लक्स के इनहिबिटर्स हैं। नाम क्या है? टीबा, 2,3,5 ट्राई आयोडो बेंजोइक एसिड एंड नेप्थेल्मिक एसिड, राइट। तो ये हो गया आपका क्या? ऑक्सिन इफ्लक्स इनहिबिटर। अगर हम इनफ्लक्स मतलब कोई भी ऑक्सिन जब इनफ्लक्स में इफेक्ट करेगा, ये हो गया इनफ्लक्स, राइट। इनफ्लक्स में कौन से ऑक्सिन्स इफेक्ट करते हैं? वो है आपका क्रोमोसैपोनिन 1 एंड अल्फा नेप्थोक्सी एसिटिक एसिड, राइट। तो हमने देखा जो ऑक्सिन्स होते हैं उसके इनहिबिटर्स भी होते हैं। इनहिबिटर आपके इनफ्लक्स में भी इनहिबिटर्स होते हैं, इफ्लक्स में भी इनहिबिटर्स होते हैं। अगर हम इफ्लक्स की इनहिबिटर के बारे में बात करते हैं तो वो हो गया आपका टीबा एंड NPA। टीबा का फुल फॉर्म है आपका 2,3,5 आयोडो बेंजोइक एसिड एंड NPA का फुल फॉर्म है आपका नेप्थेल्मिक एसिड। और जो आपके इनफ्लक्स को इनहिबिट करता है उसको हम बोलते हैं क्रोमोसैपोनिन 1 एंड नेप्थोक्सी एसिटिक एसिड, राइट। ये हो गया आपका कुछ ऑक्सिन के इनहिबिटर्स। अब हम बात करते हैं ऑक्सिन सिग्नलिंग के बारे में बात करते हैं। ऑक्सिन अगर सिग्नलिंग की बात करते हैं तो ऑक्सिन का एक रिसेप्टर होता है। रिसेप्टर का आपका नाम क्या है? T1R1। इसका मतलब क्या है? ट्रांसपोर्ट इनहिबिटर रिस्पॉन्स 1।
TIR1 को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्ट इनहिबिटर रिस्पॉन्स 1। ये क्या है, ये एक रिसेप्टर है जो कि आपका ऑक्सिन से बाइंड करता है, राइट। ये रिसेप्टर पाया कहाँ जाता है, ये पाया जाता है न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस के अंदर, राइट। तो इसको हम इंट्रासेल्यूलर या फिर सॉल्यूबल रिसेप्टर भी बोल सकते हैं। इसका इनहिबिटर भी होता है, एक ऑक्सिन सिग्नलिंग को इनहिबिट करने के लिए, मतलब जब एब्सेंस होता है तो उसका इनहिबिटर भी होता है। उस इनहिबिटर का आपका नाम क्या है, OXAIAA प्रोटीन। ये क्या है आपका, बेसिकली ये इनहिबिटर है जो कि ऑक्सिन के मैकेनिज्म को इनहिबिट करवाता है। ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेटर का नाम क्या है, ARF, ऑक्सिन रिस्पॉन्स फैक्टर, राइट। तो ये हो गया, हमने अभी क्या क्या देखा, जो रिसेप्टर है ऑक्सिन का उसको हम बोलते हैं TIR1, तो लाइक ट्रांसपोर्ट इनहिबिटर रिस्पॉन्स 1, जो कि आपका ऑक्सिन का रिसेप्टर है, राइट। ऑक्सिन का जो आपका इनहिबिटर है उसको हम बोलते हैं OX/IAA, और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को हम बोलते हैं ARF, ऑक्सिन रिस्पॉन्स। ये हो गया ऑक्सिन के सिग्नलिंग का मैकेनिज्म। पहले हम देखते हैं जब ऑक्सिन एब्सेंट रहेगा तो क्या मैकेनिज्म रहेगा, राइट। यहाँ पे ऑक्सिन एब्सेंट है तो क्या होगा, ये हो गया आपका इनहिबिटर, राइट। ये इनहिबिटर क्या करेगा, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के साथ बाइंड करेगा। जब ऑक्सिन का एब्सेंस होगा तो इनहिबिटर विल बाइंड विद द ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। जैसे ही ये दोनों बाइंड करेंगे एक साथ तो यहाँ पे एक फॉर्मेशन होगा हेट्रोडाइमर का, और ये हेट्रोडाइमर क्या करेगा, कोई भी रिस्पॉन्स शो नहीं करेगा, नो रिस्पॉन्स, राइट। और अगर हम इसी चेंजेस को अगर हम देखते हैं विद द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सिन, अगर ऑक्सिन प्रेजेंट है, आप ध्यान से देखोगे तो इस केस में ऑक्सिन प्रेजेंट है। अगर ऑक्सिन प्रेजेंट है तो ऑक्सिन क्या करेगा, ऑक्सिन इन दोनों को बाइंड होने नहीं देगा, राइट। एज ए रिजल्ट दोनों सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है। जो आपका OXIAA है ये आपका प्रोटियो, इसमें यूबिक्विटिन का टैग लग जाते हैं, और जिसको यूबिक्विटिन का टैग लगता है वो तो पक्का है कि उसका कुछ दिन खराब है और वो मरना ही है उसको, राइट। तो जैसे ही उसको यूबिक्विटिन का टैग लगता है तो सीधा ये प्रोटोसोमल डिग्रेडेशन के पाथवे में चला जाता है। तो फ्री कौन रह गया, ARF क्या करेगा, डायमर फॉर्म करता है, न्यूक्लियस में जाता है, फिर ये आपका रिस्पॉन्स शो करवाता है, राइट। क्लियर हुआ यहाँ तक। अगर आपको ऑक्सिन में कुछ भी डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो, राइट। नेक्स्ट क्लास हम बात करेंगे जिब्रेलिन के बारे में। कुछ भी क्वेरीज है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। मेरे आप अनअकैडमी के ऐप डाउनलोड करने के बाद देवश्री टाइप करना, आप वहाँ पे मेरा प्रोफाइल आएगा, वहाँ आप मैसेज कर सकते हो कोई भी क्वेरीज के लिए। और अगर आपको कमेंट सेक्शन में भी आप कमेंट कर सकते हो आपके क्वेश्चंस को लेके, डाउट्स को लेके, राइट। और अगर और आप हमारे जो टेलीग्राम चैनल है लेट्स क्रैक CSI UGC नेट, वहाँ आप ज्वाइन कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दिस आप भी चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन हो देन इट विल रीच टू यू, right? Thank you so much students. Bye bye, take care. Next class, 1 minute, next class we will discuss about the remaining hormones, right? Thank you so much. Bye bye, take care.